دو جنگجو خاندانوں امیر تیمور اور چنگیز خان کا سپوت اپنے خاندان والوں سے شکست کھا کر ایک طویل عرصہ جلا وطنی میں گزارنے کے بعد دہلی سے 90 کلومیٹر دور پانی پت کے علاقے میں اپنے چند ہزار فوجیوں کے ہمراہ موجود تھا اور اس کے مد مقابل 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر تھا جن میں 1000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ امیر تیمور کا یہ جانشین 5 مرتبہ شکست کا ذائقہ چکھ چکا تھا، لیکن آج وہ انتہائی پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ آج اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو اس کی کامیابی کی ضمانت بننے جا رہا تھا۔ اس روز بر صغیر کی تاریخ کا فیصلہ ہونے والا۔ ناظرین، وہ فیصلہ کیا تھا اور اس کا وہ خفیہ ہتھیار کون سا تھا جس کی بنیاد پر وہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو مغلیہ سلطنت کی عظیم الشان تاریخ پر مبنی ہماری اس سیریز کی یہ پہلی قسط مکمل دیکھیے۔ وہ عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبان پر مکمل عبور رکھتا تھا۔ اسے موسیقی اور فن انشاء میں مہارت تھی اور مشائخ سے بھی خاصی عقیدت تھی۔ بر صغیر کے اس عظیم شہنشاہ نے ایک شاہی خاندان میں 15 فروری 1483 میں آنکھ کھولی۔ اس کا پورا نام ظہیر الدین محمد تھا اور اس کی ماں اسے بابر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھی۔ اس طرح اس کا پورا نام تاریخ میں ظہیر الدین محمد بابر مشہور ہے۔ اس کے والد عمر شیخ مرزا کا تعلق امیر تیمور کے خاندان سے تھا اور والدہ قتلگ نگار خانم چنگیز خان کے خاندان سے۔ بابر کے والد ایک علم دوست انسان تھے اور والدہ ترکی اور فارسی کی فاضلہ تھی۔ یوں بابر کو بہادری اور شجاعت اپنے خاندان سے ملی اور ذہانت اپنے والدین سے۔ ناظرین، بابر اپنی تعلیم و تربیت میں مصروف تھا کہ ایک دن اسے اچانک اطلاع ملتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بابر یہ خبر سن کر بہت رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خود کو تیار کرتا ہے اور مغلیہ سلطنت کے رسم و رواج کے مطابق اپنے والد کی جگہ پر تخت نشین ہو جاتا ہے۔ بابر ابھی 11 سال ہی کا ہے اور لوگ اسے بادشاہ ظہیر الدین بابر کے نام سے جانتے ہیں۔ فرغان سلطنت کا یہ کم عمر بادشاہ اپنی حکمت عملی، عقل مندی، شجاعت اور بہادری کے باعث دن بدن عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بابر کے چچا احمد مرزا کو ہضم نہیں ہو رہی اور اپنے اسی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ایک دن اچانک احمد مرزا اپنے حقیقی بھائی کے کم عمر بیٹے پر سلطنت کی لالچ میں حملہ کر دیتا ہے۔ بابر کو مجبوراً اپنے چچا پر تلوار اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس اچانک حملے سے وہ لاچار ہو جاتا ہے۔ یہ کم عمر بادشاہ اپنے چچا سے شکست کھا کر اپنی سلطنت کے کئی علاقوں کی حکمرانی کو کھو دیتا ہے، جبکہ دوسری چوٹ اس کو اپنے حقیقی ماموں محمود خان سے لگتی ہے، جو یہ گمان کرتا تھا کہ شاید اب بابر کمزور ہو چکا ہے اور وہ اس کے حملے کو برداشت نہیں کر سکے گا اور شکست کھا کر باقی سلطنت اس کے حوالے کر دے۔ لیکن محمود خان اس بات سے بے خبر تھا کہ بابر کی ذہانت اس کے والدین کی جانب سے اس کے خون میں شامل تھی۔ مزید یہ کہ چچا سے کھائی ہوئی شکست نے اسے مزید مضبوط کر دیا تھا۔ بابر کے دل میں اپنے چچا کی جانب سے ملنے والی شکست کے زخم ابھی تازہ تھے، اس لیے اپنے چچا کی وفات کے فوراً بعد ہی اس نے سمرقند پر حملہ کر دیا اور اس طرح اپنی باقی سلطنتوں کو واپس لے لیا۔ بابر نے اپنے عوام سے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو لوٹ مار سے روک دیا، جس پر منگول سپاہیوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور بابر سے بدلہ لینے کے لیے فرغانہ میں اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر کو حکمران بنا دیا۔ جب بابر کو اس کی خبر ہوئی تو بابر اپنی فوج کے ساتھ فرغانہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑا۔
और इसी दौरान उसके पीछे उसके चचा जाद सुल्तान मिर्जा ने समरकंद पर हमला कर दिया और इस तरह बाबर को अपनी दोनों सल्तनतों से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद बाबर एक अरसे तक जिलावतनी का शिकार रहा। कभी फतह हासिल की और कभी शिकस्त से दो चार हुए। कभी शाही तर्ज़े जिंदगी इख्तियार किया तो कभी मुफलिसी में दिन गुजारे। इसी तरह जिद्दोजहद में बाबर ने कुछ हुक्मरानों के साथ मेल जोल करके अपनी फौज को मजबूत किया और अफगानिस्तान से एक अहम शहर काबुल का रुख किया। इस मर्तबा किस्मत बाबर पर मेहरबान हुई और वो काबुल में फतह याब हुआ। बाबर जब भी फतह याब होता तो वह अपने वालिद के तख्त और अपने आबाई इलाके से मोहब्बत की खातिर अपनी इब्तिदाई सल्तनत पर फतह पाने की कोशिश करता, लेकिन बदकिस्मती से वो हर दफा नाकाम लौटता। लेकिन इस दफा जब बाबर ने शिकस्त खाई तो वो दिल बर्दाश्ता होकर खड़ा हो गया और एक नया अज़्म लेकर बर्रे सगीर की जानिब अपनी फौज लेकर रवाना हुआ। उस वक्त बर्रे सगीर में इब्राहिम लोधी हुक्मरान था। इब्राहिम लोधी खानदाने लोधी के आखिरी हुक्मरान सिकंदर लोधी का बड़ा बेटा था, जिसने अपने अखड़पन से इर्द गिर्द की रियासतों में कोहराम मचा दिया था। मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने उसका मुकाबला करने के लिए काबुल से ज़हीरुद्दीन बाबर को मदद के लिए बुलाया और लोधी और मुगल फौजों की लश्करों का आमना सामना बर्रे सगीर की तारीखी पानीपत की पहली जंग में हुआ। ये 21 अप्रैल 1526 है। बाबर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इब्राहिम लोधी की फौज को अपनी जानिब आता देख रहा। इब्राहिम लोधी की फौज कोई आम फौज नहीं, बल्कि उसकी फौज 50,000 से जायद जंगजुओं, कई हजार हाथियों और कई हजार घोड़ों पर मुश्तमिल है। और बाबर ये बात भी अच्छे से जानता है कि उसके मद्दे मुकाबिल उसकी फौज से 8 गुना बड़ी फौज है, लेकिन फिर भी उसकी पुरएतमादी बला की। कुछ है जिसने बाबर को इतनी बड़ी फौज के आगे खड़ा कर दिया, लेकिन वो क्या है, इस बात से इब्राहिम लोधी और उसकी फौज यकसर बेखबर है और अपनी ताकत के खुमार में मैदान जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे ही इब्राहिम की फौज करीब आती है तो जोरदार धमाकों की गूंज जहां इब्राहिम लोधी को हैरान और परेशान कर देती है, वहीं वो देखता है कि उसकी फौज की सफ़ें टूटने लगी है और हर तरफ भगदड़ मच गई है। नाज़रीन, ये बाबर की तोपों की घनगरज थी जो मैदान जंग के इर्द गिर्द दूर दराज इलाकों में भी सुनी जा रही थी और सबके दिलों में हैबत डाल रही थी। हत्ता के कुछ लोगों का गुमान था कि शायद कयामत आज ही बर्पा हो चुकी। इब्राहिम लोधी की फौज के 1000 जंगी हाथी, जिनकी दहशत दुश्मन पर लर्ज़ा तारी कर देती थी, अब ये हाथी उल्टे कदमों अपनी ही फौज को कुचलकर भाग रहे थे। नाज़रीन, ये पानीपत की पहली लड़ाई थी और इसके साथ साथ ही हिंदुस्तान की भी पहली जंग थी जिसमें बारूद की तोपों को इस्तेमाल किया गया था। और तारीख गवाह है कि जदीद हथियार जिस दौर में भी इस्तेमाल किए गए, उन्होंने जंगों का पासा पलट कर रखा और पानीपत में भी बाबर ने ये जंग तोपों की मदद से ही जीती। बाबर ये जानता था कि लोधी की 8 गुना बड़ी फौज का मुकाबला सिर्फ 12,000 सिपाहियों से नहीं किया जा सकता। लिहाजा बाबर ने सल्तनत उस्मानिया के जदीद हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया। सल्तनत उस्मानिया उस वक्त सुपर पावर थी जिसने पूरी दुनिया में जदीद हथियारों से अपनी धाक बिठा रखी थी। बर्रे सगीर में इन जदीद हथियारों का बेहतरीन और फैसला कुन इस्तेमाल करके मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जंग का पासा पलट दिया था। उसने तोपों के साथ साथ तुर्क तोपचियों की भी खिदमत हासिल की और बाद में इन्हीं तोपचियों ने हिंदुस्तान में तोपसाजी शुरू कराई। बाबर की कामयाबी का राज ये था कि उसने अपनी जंगी चाल और हथियार को इब्राहिम लोधी से छुपाए रखा। उसने तोपों को चमड़े के रस्सों से 700 बैलगाड़ियों के साथ बांध रखा था
जिनके पीछे तोपची और बंदूक बरदार आड़ लिए थे। इस मौके पर ज़हीरुद्दीन बाबर के 12,000 तरबियत याफ्ता घुड़सवारों ने बर्क रफ्तारी से लोधी की फौज को चारों तरफ से घेर कर उनका सफाया कर दिया। और यूं बाबर फतह हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हुआ, तो उसकी अस्करी बालादस्ती में उस वक्त के सबसे बड़े हथियार यानी तोप ने बुनियादी किरदार अदा किया। नाज़रीन, जब बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ तो यहाँ उसका इस्तकबाल इब्राहिम लोधी की माँ बुआ बेगम ने किया। बाबर ने निहायत अदब और एहतराम से उसे माँ का दर्जा दिया और दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले उसने अंदरूनी बगावत को खत्म किया। रफ्ता रफ्ता उसकी हुकूमत काबुल से बंगाल तक और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई। बाबर के बारे में एक अच्छी बात यह थी कि उसकी रहमदिली और इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक होता था। एक दफा दरियाए जेहलम के किनारे वाक़े शहर भेरा से फौजी दस्ते गुजर रहे थे। कई मील तक दरिया के किनारे फैली हुई पहाड़ियों के दामन में वाक़े शहर हजारों घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। इन घोड़ों में असलहा बरदार और चाको चौबंद फौजी सवार थे। शहर वाले अपने घरों में दुबके हुए थे और उनकी आंखों में खौफ के साए रक्सा थे कि पता नहीं हमलावर लश्कर उनके साथ क्या सलूक करेगा। दूर दराज की झरियों से झांक झांक कर गुजरने वाली फौज को सहमी हुई निगाहों से देख रहे। लश्कर के वस्त में सिपा सालार की शानदार सवारी थी। सिपा सालार मजबूत और तवाना बदन और औसत कद का हामिल एक खुशशक्ल नौजवान था। उसके चेहरे और अंदाजो अतवार से महसूस होता था कि जैसे वो एक शाइस्ता, बामुरव्वत और नर्म खून लेकिन पुरअज़्म इंसान है। अचानक शहर के एक हिस्से से कुछ चीखों पुकार की आवाजें बुलंद होने लगी। कुछ लोग फरियाद कर रहे थे और उनकी आवाजों में लुट जाने का नोहा और बेबसी का इजहार था। सिपा सालार ने फौरन हुक्म दिया कि इस हंगामे का सबब मालूम किया जाए। बहुत जल्द सिपा सालार को इत्तला दी गई कि उसकी फौज के एक हिस्से ने शहरियों के साथ ज्यादती की। सिपा सालार के खूबसूरत चेहरे पर तैश के आसार नमूदार हो गए। उसने फौरन उन तमाम सिपाहियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जिन्होंने शहरियों के साथ ज्यादती की थी। कुछ ही देर में तमाम मुल्जिमान हाजिर कर दिए गए। सिपा सालार ने सिपाहियों से पूछगछ की और उन्होंने शहरियों के साथ ज्यादतियों का इकरार कर लिया। सिपा सालार ने फौरन हुक्म दिया कि फुलां फुलां सिपाहियों को सजाए मौत दे दी जाए और फुलां फुलां की नाकें कटवा दी जाए और इन फैसलों की पूरे शहर और फौज में अच्छी तरह तशहीर कर दी जाए। नाज़रीन, बाबर ने तशहीर का हुक्म इसलिए दिया कि आइंदा फौज के किसी आला तरीन अफसर को भी रियाया के किसी फर्द या अपने महकूम व मफतूर शहरियों या देहातियों से किसी तरह की ज्यादती की जुर्रत न हो सके। ज़हीरुद्दीन बाबर इस कदर इंसाफ पसंद था कि उसके महल के बाहर एक जंजीर लगी होती थी। ये जंजीर आम रियाया के लिए थी कि जब भी किसी को इंसाफ की जरूरत होती वो आकर ये जंजीर खींच लेता। दूसरे बादशाहों की तरह इस बादशाह में दौलत की हवस भी नहीं थी। आगरा फतह करने के बाद उसके कब्जे में कसीर तादाद में मालो ज़र आया था, लेकिन ये मालो ज़र उसने अपने खजानों में छुपाने के बजाय मक्का और मदीना भिजवा दिया और कुछ अपनी फौज और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। कहा जाता है कि उसका बड़ा बेटा हुमायूं सख्त बीमार था और बाबर ने एक मशहूर एशियाई रस्म के मुवाफिक उसके लिए अपनी जान तसद्दुक करना चाही। चुनाचे वो 3 बार अपने बीमार फर्जंद के पलंग के गिर्द फिरा और सिद्के दिल से दुआ मांगी कि उसकी बीमारी मुझे लग जाए। इसके बाद बाबर को कामिल यकीन हो गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और उसने बुलंद आवाज में कहा कि हुमायूं की बीमारी मुझ में आ गई। ताज्जुब की बात यह है कि दर हकीकत हुमायूं उस वक्त से बेहतर होता गया और बाबर का हाल आनन फानन बिगड़ता गया, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी सेहत में पहले से भी कुछ फतूर वाक़े हो रहा था। आखिरकार अपने बच्चों और वजीरों को यह नसीहत करते करते
कि तुम हमेशा इत्तेफाक और मोहब्बत से रहना। 26 दिसंबर 1530 को बाबर इंतकाल कर गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल में एक पहाड़ी पर वाक़े महबूब बाग में दफन किया गया। बाबर की कब्र का तावीज़ बेशकीमत पत्थर लाजवर्द का बनाया गया। नाज़रीन, ये वही पत्थर है जो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी लगाया गया है। इस शफ़ाफ पत्थर से रोशनी गुजरती है तो लाजवर्दी रंग की शुआएं निकलती है। 12 साल की उम्र से मरते दम तक इस बहादुर बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ से तलवार नहीं छूटी और बिलाखिर वो अपनी आइंदा नस्ल के लिए हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत की बुनियाद डालने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर एक अजीम जंगजू ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक अजीम मुसन्निफ भी था। तज़्के बाबरी उसकी एक मशहूर तसनीफ है जिससे ये बखूबी अंदाज़ा होता है कि न सिर्फ वो तलवार का धनी था बल्कि कलम का भी बादशाह था। ज़हीरुद्दीन बाबर की पूरी जिंदगी मैदान जंग की जिंदगी, इक़्तिदार की कशमकश और अपनी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को महफूज बनाने की जिद्दोजहद। बाबर ने हिंदुस्तान में जिस सल्तनत की बुनियाद सख्त मेहनत और जंगो जदल से रखी थी, उसका अगला वारिस कौन बना और उसके दौर में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे इस सीरीज की अगली किस्त। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर की अगली किस्त बर वक्त मौसूल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए। मजीद ये कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।